ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 28 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PCS, PPSC, SSC, CGL, CHSL ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, WhatsApp, Telegram, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ IBPS RRB ਲਈ JEE ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਚਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? 2030 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ 60% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 510 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਯੂਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? 1 ਕਰੋੜ ਯੂਥ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 1 ਕਰੋੜ ਯੂਥ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। NSDC ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਔਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀਮ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MD and CEO ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ। IOB ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ MD and CEO ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀਮ ਸੇਨਗੁਪਤਾ। ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਔਰ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਪਲੋਕ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਐਪਲੋਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਐਪਲੋਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਮਰ ਮਿਸਾਈਲ ਔਰ ਮਿਟਿਓਰ ਮਿਸਾਈਲਸ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਮਿਟਿਓਰ 에ਅਰ ਟੂ 에ਅਰ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹੈਮਰ 에ਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਮਿਟਿਓਰ 에ਅਰ ਟੂ 에ਅਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟ COVID-19 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ COVID-19 ਦਾ। ਐਸੀ ਕਿੱਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ COVID-19 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀਪੱਲੀ ਵੈਰਾਕੋਡੀ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ
श्रीपल्ली वैराकोडी श्रीलंका तो बिलोंग करते हैं, वूमैन क्रिकेटर ने रिटायरमेंट अनाउंस की है। नैक्सट है कला नारायणा स्वामी, कला नारायणा स्वामी इन्होंने एक अवार्ड दिता गया। इन्हों सिंगापुर के प्रेजिडेंट हमीला याकूब द्वारा प्रेजिडेंट्स अवार्ड दिता गया फॉर नर्सिस। ये नर्स ने उत्थे कला नारायणा स्वामी इन्हों प्रेजिडेंट्स अवार्ड फॉर नर्स दिता गया सिंगापुर द्वारा। सिंगापुर के प्रेजिडेंट का नाम भी याद रखांगे हमीला याकूब। बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक दे विच इन्होंने जो सर्विसिज प्रोवाइड कीतियां ने उन्हां दे लई इन्हों यह प्राइज़ दिता गया। नैक्सट है यूएसए के प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की करिया रिलायंस नूं क्लीन टैलीकॉम कंपनीज़ दे विच ऐड किया। यूएसए की क्लीन टैलीकॉम कंपनी दे विच रिलायंस नूं भी ऐड किया गया यूएसए प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। नैक्सट है सेंट्रल रेलवे ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की चैक इन मास्टर नाम की एप्लीकेशन सेंट्रल रेलवे द्वारा लॉन्च की गई। किस दे लई? टिकट चैकिंग के लिए। कित्थे? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मीनस मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मीनस मुंबई दे विच इसनूं लॉन्च किया गया। झारखंड द्वारा अनाउंस किया गया कि अगर मास्क ना पहनया जाए और वायलेशन की जा रही है कोविड-19 प्रोटोकॉल की तो तुहानूं 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना फॉर नॉट वेयरिंग मास्क एंड वायलेशन ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। नैक्सट है उड़ीसा ने डिसाइड करा रिटायरमेंट एज है जी डॉक्टर्स की उसनूं 62 तो 65 कर दिता है। डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज नूं 62 तो 65 किया गया उड़ीसा गौरमेंट द्वारा। उड़ीसा रिलेटेड ही होर न्यूज़ सी कि अमित शाह कौन ने? होम मिनिस्टर ने। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा उत्कल उपवन का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये की है? बेसिकली एक इको पार्क है जिसनों एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन जरसूगोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा दे विच बनाया जाएगा। जरसूगोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा दे विच फाउंडेशन स्टोन रखा अमित शाह ने एक इको पार्क का नाम कहा जाएगा उत्कल उपवन। किन्ने करोड़ का? 14 करोड़ की लागत के नाल इसनूं बनाया जाएगा। नैक्सट है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने इनोग्रेट किया की इनोग्रेट किया वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी। वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी एक हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी नूं आनंद गुजरात दे विच इनोग्रेट किया गया। आनंद गुजरात दे विच इनोग्रेट किया गया नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। नैक्सट है G20 डिजिटल इकनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग नूं सऊदी अरेबिया द्वारा होस्ट किया गया और इंडिया वालों रविशंकर प्रसाद IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। सिंपल चीज़ें तो याद रखनी है बस। नैक्सट है इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर। इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने प्रकाश जावेदकर इन्होंने लॉन्च किया नैशनल ट्रांजिट पास सिस्टम इसनूं इंदिरा पर्यावरण भवन दिल्ली दे विच लॉन्च किया गया। इंदिरा पर्यावरण भवन दिल्ली दे विच नैशनल ट्रांजिट पास सिस्टम नूं लॉन्च किया गया। बेसिकली ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट का ही एक पार्ट होएगा। नैक्सट है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन ने? अर्जुन मुंडा। इन्होंने सिंपोइजम लॉन्च किया। सिंपोइजम इसनूं लॉन्च किया ऑन हैंडीक्राफ्ट उत्ते एक एग्जीबिशन कह सकते हैं जिसनों IIM शिलोंग द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया सी। इसका टाइटल है एमरजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स इन हैंडीक्राफ्ट्स। बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट किया गया IIM शिलोंग द्वारा और इसके उत्ते जिहड़ा क्या कह सकते हैं भी एग्जीबिशन कह सकते हैं सिंपोइजम कह सकते हैं इसनूं इनोग्रेट किया गया अर्जुन मुंडा द्वारा। फर्स्ट एवर इंडिया सोलिस्टिक असैसमेंट टेस्ट या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म दे विच INDSAT 2020 एक टेस्ट है जिहड़ा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया सी। यह बेसिकली बजट के विच अनाउंस किया गया सी। आपां पहले भी डिस्कस किया है कि जिहड़े स्टूडेंट्स फॉरन कंट्रीज़ तो इंडिया के स्टडी करना चाहते हैं उन्हों के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर एक टेस्ट लिया जाएगा जिस दे नाल उन्होंने एडमिशनस प्रोवाइड की जाएगियां। तो वो टेस्ट का नाम रखा गया INDSAT 2020। ये पहली बार कंडक्ट किया जा चुके। नैक्सट है मुथूट
फाइनैंस कॉरपोरेशन कह सकते हैं, इन्हों द्वारा एक एडवाइजरी पोर्टल MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए एक एडवाइजरी पोर्टल रीस्टार्ट इंडिया नू लॉन्च किया गया, जिसनों इनोग्रेट किया नितिन गडकरी। MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसनों इनोग्रेट किया है। नैक्सट है स्टैटिक जीके दे विच आपां रिवर्स एंड टाउनस स्टडी कर रहे हैं कि किहड़ी रिवर के किनारे किहड़ा टाउन बसिया होया है। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा के किनारे जबलपुर कित्थे है, नर्मदा के किनारे। पंजी सिटी है जिहड़ी वह मांडवी रिवर के किनारे है, मांडवी रिवर के उत्ते बसी हुई है पंजी सिटी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा रिवर के उत्ते गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्रा रिवर के उत्ते है, डिब्रूगढ़ भी बेसिकली असम के विच पैंदा है, यह कित्थे है ब्रह्मपुत्रा रिवर के उत्ते। कोलकाता, ये काफ़ी बार पूछा गया, कोलकाता हुगली रिवर के उत्ते है, कोलकाता हुगली रिवर के किनारे केड़ी सिटी बची हुई है, कोलकाता। काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। नैक्सट आप चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच डे इज़ ऑबजर्वड एज वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे कदों ऑबजर्व किया गया। वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे अज ऑबजर्व किया जाएगा, यानी कि 28 जुलाई नूं वर्ल्ड नेचर कंजरवेशन डे ऑबजर्व किया गया। ठीक है जी, एक डे आप पहले स्किप करता सी, वो भी इत्थे स्टडी कर लें। 26 जुलाई कारगिल की लड़ाई अगर आप गल करिए, 26 जुलाई काफ़ी इतिहासिक दिन है। 1999 के इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई है जी वो फाउट की गई सी, और 26 जुलाई नूं कारगिल विजय दिवस के तरीके नाल ऑबजर्व किया जाता है। 26 जुलाई नूं कारगिल विजय दिवस ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है जी, कदों ऑबजर्व किया जाता है कारगिल विजय दिवस? 26 जुलाई। इस तो इलावा बाकी दिन अगर आप डिस्कस करिए तो नैशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई नूं ऑबजर्व किया गया। 20 जुलाई नूं यूनाइटेड नेशनस द्वारा जी फाइड इंटरनेशनल चैस फैडरेशन की कह सकते हैं हैडकुआटर है फाइड, जिहड़ा पैरिस के बनाया गया सी 1924 के विच, और जिसका हैडकुआटर इस टाइम लॉजेन स्विट्जरलैंड के विच है। इसके फाउंडेशन डे के तौर पर वर्ल्ड चैस डे ऑबजर्व किया जाता है। वर्ल्ड चैस डे हर साल 20 जुलाई नूं ऑबजर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशनस द्वारा। 18 जुलाई नूं नेल्सन मंडेला डे ऑबजर्व किया जाता है। नेल्सन मंडेला डे कदों ऑबजर्व किया गया? 18 जुलाई। नेक्स्ट, इंडिया सेंट 1 मिलियन वर्थ ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज पर WHO रिक्वेस्ट। सब तो पहले काफ़ी इंटरस्टिंग न्यूज़ है कि WHO ने कहा कि 1 मिलियन की एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन भेजन नूं किहड़ी कंट्री नूं इंडिया ने भेजियां ने? नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जी FATF की लिस्ट दे विच है, FATF की ब्लैक लिस्ट दे विच है, यानी कि इसनूं किसी भी तरीके की फंडिंग नहीं दी जाती। पर जदों गल आती है हैल्थ के मामले की तो फंडिंग देनी जरूरी हो जाती है। तो इंडिया ने 1 मिलियन की एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन, कोविड-19 के रिलेटेड नहीं हैगी, ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस TB की जी बीमारी है उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड की ने नॉर्थ कोरिया नूं। ठीक है जी, एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ WHO के कहन से, याद रखना है। अच्छा, पहले WHO बारे डिस्कस कर लें कि WHO 7 अप्रैल 1948 नूं WHO बनाया गया सीगा जनेवा स्विट्जरलैंड के विच। हैडकुआटर है टेड्रोस एडानोम इसके हैड ने। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के विच रहे सी USA करके, क्योंकि USA ने सैंक्शनस लगा दित्तियां सी WHO उत्ते, और ऑफिशियली अनाउंस भी किया कि USA जिहड़ा वो WHO नूं क्विट कर देगा। इस तो इलावा अगर कैपिटल्स और करंसी डिस्कस करिए तो साउथ कोरिया कैपिटल सियोल है, करंसी वॉन चलती है। नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्योंगयांग, करंसी वॉन चलती है, करंसी सेम है वॉन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कैपिटल्स डिफरेंट ने। मालदीव्स कैपिटल माले है, UAE कैपिटल
मेरा माइंड जो स्किप हो रही है, यूएई कैपिटल साउथ, चलो मैं इससे स्किप करदा। यूएई कैपिटल तुसी कमेंट बॉक्स में दसनी है। भूटान कैपिटल थिम्पू है, भूटान कैपिटल थिम्पू है। करंसी नगोलतरम चलती है, ठीक है जी। इस तो इलावा यूएई रिलेटेड याद रखना है, आईपीएल है जिहड़ा कंडक्ट किया जाएगा यूएई दुबई दे विच, यूएई दे विच हेल्ड किया जाएगा आईपीएल। नेक्स्ट है, विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च व्हीकल इंश्योरेंस। अच्छा, यूएई कैपिटल आबू धाबी, आबू धाबी। विच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च व्हीकल इंश्योरेंस इन पार्टनरशिप विद एको जर्नल इंश्योरेंस। एको जर्नल इंश्योरेंस के नाल किहड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कह सकते हैं पार्टनरशिप की है, किस दे लई? व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। इसका आंसर है एमाजोन पे। एमाजोन पे ने एको जर्नल इंश्योरेंस के नाल, एको जर्नल इंश्योरेंस के नाल पार्टनरशिप की है कि प्रोवाइड करवाने के लिए व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल्स नूं इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है जी, याद रखना है। नेक्स्ट है, विद विच आईआईटी, केड़ी आईआईटी के नाल मिलके ट्राईफेड ने एमओयू साइन किया उन्नत भारत अभियान के लिए। उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राईफेड ने एग्रीमेंट साइन किया आईआईटी दिल्ली के नाल। किस दे नाल एग्रीमेंट साइन किया? आईआईटी दिल्ली के नाल। आईआईटी दिल्ली के नाल मिलके उन्नत भारत अभियान के लिए ट्राईफेड के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा आईआईटी मद्रास की गल करिए, आईआईटी मद्रास ने चिल्का लेक के लिए उड़ीसा के नाल एग्रीमेंट साइन किया कि चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के विच बनी हुई है, इस दे विच इरूवेडी डॉल्फिन्स ने और उन्हों की जी नंबर है ट्रिपल करने के लिए, 3 गुना करने के लिए आईआईटी मद्रास ने एग्रीमेंट साइन किया उड़ीसा के नाल, ठीक है जी। इस तो इलावा आईआईटी मद्रास ने NHRF समथिंग इस तरीके की एक रैंकिंग रिलीज़ की गई सी, उस दे विच भी टॉप किया सी। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क्स NIRF सी शायद, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क इस दी रैंकिंग्स नूं टॉप किया सी। आईआईटी गुवाहाटी ने फ्लाईजी मोबाइल एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया सी आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गांधीनगर ने की किया सीगा प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया सी। प्रोजेक्ट आईसैक लॉन्च किया गया सी आईआईटी गांधीनगर द्वारा, जिस दे अंडर स्टूडेंट्स नूं कह सकते हैं कि बिजी रखने के लिए कोविड-19 दौरान कुछ इंटरस्टिंग और डेवलपमेंट्स करने के लिए, डिस्कवरीज करने के लिए आईआईटी गांधीनगर द्वारा प्रोजेक्ट आईसैक न्यूटन आईसैक के उत्ते इसनूं लॉन्च किया गया सी। आईआईटी बॉम्बे द्वारा एक डिजिटल स्टैथोस्कोप जिसका नाम आईस सिंक रखा गया सी, आईस सिंक नाम का एक डिजिटल स्टैथोस्कोप डेवलप किया गया सी आईआईटी बॉम्बे द्वारा। नेक्स्ट है, द कंप्लीशन पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज अंडर पीएम आवास योजना ग्रामीण होम कम्स डाउन टू। पीएम आवास योजना ग्रामीण बेसिकली एक स्कीम जिसनों लॉन्च किया गया सीगा हाउसिंग फॉर ऑल, इंग्लिश दे विच गल करिए हाउसिंग फॉर ऑल। इसका टारगेट रखा गया सी 2022, लॉन्च किया गया सी इसनों 2016 दे विच। 2016 दे विच प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना लॉन्च की गई सी। इसनों किस दे लिए लॉन्च किया गया सी? इसनों लॉन्च किया गया सी ताकि हर एक परसन नूं हाउस प्रोवाइड किया जा सके, जिसका टारगेट रखा गया 2022। हुण इन्हां ने की करिया कि इसका कंस्ट्रक्शन पीरीयड हुंदा सी कि पहले यह 314 दिन की एवरेज टाइम 314 दिन लगते थे एक घर बनाने नूं, और हुण इसनूं रिड्यूस करके 114 दिन कर दिता गया कि जिस घर नूं 314 दिन दे विच बनाया जा रहा सी हुण उसनूं 114 दिन दे विच बनाया जाएगा। न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी, क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि पहले एवरेज टाइम कितना सी 314 डेज़ और हुण कितना है 114 डेज़, ठीक है। स्कीम लॉन्च की गई सी 2016 दे विच, टारगेट रखा गया 2022 हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना, याद रखनी। नेक्स्ट है HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री सब तो पहले रमेश पोखरियाल निशांक दे लवे है, हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने, याद रखने। प्लस इन्होंने की करा एक कमेटी सैटअप करी, कमेटी किस दे लई? टू फॉर्म गाइडलाइंस फॉर मोर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ DP ਸਿੰਘ। DP ਸਿੰਘ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ? UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ DP ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ? HRD ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੀਲੇ ਸੁਮਨਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈੱਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਐਨੂਅਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਔਰ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਦੀਲੇ ਸੁਮਨਰੀਵਾਲਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। SCL ਦਾਸ ਔਰ BP ਕਤਾਕੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਸਮ ਦੇ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਮ ਆਇਲ ਵੈਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NGT ਦੁਆਰਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ SCL ਦਾਸ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੰਜਮ ਆਇਲ ਵੈਲ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ BP ਕਤਾਕੇ। ਫਾਰਮਰ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ BP ਕਤਾਕੇ। G ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। G ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਫਰੀडम फाइटर्स ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ G ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ। ਅੱਛਾ, G ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। G ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਰਮੀ ਬੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? G ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ what is the rank of India in gaining forest area in world according to Food and Agriculture Organization? Food and Agriculture Organization ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਊ ਡੋਂਗਿਊ ਇਸਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੇਨਿੰਗ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 33% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ 0.38% ਐਨੂਅਲ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 24 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ 0.38% ਐਨੂਅਲ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਵੇਂ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗੇਨਿੰਗ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੌਪ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਈਨਾ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ? ਵੀਅਤਨਾਮ। ਚਾਈਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਿਲੀ ਔਰ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 36th ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ COP25 ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। COP26 ਸਮਿਟ ਗਲਾਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ which of the following UT has announced to launch macadamization program for the improvement of roads? pronunciation ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ
कि मकैडमिनेशन प्रोग्राम है जिहड़ा ਇਹ रोड की इंप्रूवमेंट के लिए किहड़ी यूटी द्वारा लॉन्च किया गया, किहड़ी यूटी द्वारा लॉन्च किया गया, जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जी सी मुर्मू ने इसनों अनाउंस किया है कि मकैडमिनेशन प्रोग्राम रोड्स की इंप्रूवमेंट के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। लद्दाख की गल करिए, लद्दाख के लैफ्टिनेंट गवर्नर ने आर के माथुर दोनों को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जदों यूटीज़ बनाया गया सीगा। अगर आप गल करिए जदों ये फुल फ्लैज स्टेट होंदी सी तो सत्यपाल मलिक इत्थे दे गवर्नर होंदे सीगे और इन्हां नूं हुण गोवा का गवर्नर बना दिता गया। हुण ये गोवा के गवर्नर ने, सत्यपाल मलिक गोवा के गवर्नर ने। चंडीगढ़ की गल करिए, वीपी सिंह बदनौर चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लस पंजाब के गवर्नर भी ने। इस तो इलावा अगर चंडीगढ़ की गल करिए, चंडीगढ़ के वीपी सिंह बदनौर द्वारा ही CHD कोविड एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया सी। CHD कोविड एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया सी। दिल्ली की गल करिए, अनिल बेजल इत्थे दे गवर्नर ने और इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने जिहड़े अरविंद केजरीवाल। ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया सी दिल्ली दे विच। ये रखना है, ऑपरेशन शील्ड कित्थे लॉन्च किया गया सी, दिल्ली दे विच। पुडुचेरी के जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने वी नारायण स्वामी ने और गवर्नर की गल करिए इत्थे दे गवर्नर ने किरण बेदी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम वर्ल्ड नंबर 2 एनर्जी कंपनी। अपना आंसर होएगा रिलायंस काफ़ी ज़्यादा चीज़ां करके न्यूज़ के रह रही है, इंपॉर्टेंट बनेगी कि वर्ल्ड की नंबर 2 एनर्जी कंपनीज़ दे विच वर्ल्ड की सैकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है रिलायंस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट किहड़ी कंपनी है, फर्स्ट है अरैमको नाम की कंपनी फर्स्ट कंपनी है जिहड़ी बेसिकली सऊदी अरेबिया दे विच हैडक्वार्टर है जिहदा अरामको। और रिलायंस ने किसनों पिछे छड्ड के सैकेंड नंबर पर आई है, एग्जम मोबिल नूं पिछे छड्ड के रिलायंस सैकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी बन चुकी है, वर्ल्ड की सैकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी बन चुकी है। मुकेश अंबानी इज ए हैड ने। रिलायंस की सबसिडरी है जियो, जिसदे विच रिलायंस ने स्टेक बेचे काफ़ी ज़्यादा और FDI नूं इंक्रीज़ किया है, फॉरन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट नूं इंडिया की इंक्रीज़ किया है। प्लस रिलायंस दे विच सब तो बड़ा स्टेक बाय किया गया 9.99% फेसबुक द्वारा, 9.99% फेसबुक द्वारा। प्लस गूगल द्वारा भी इस स्टेक बाय करने की गल की गई सी, 7.7% बेसिकली स्टेक बाय किया जाएगा गूगल द्वारा। दो चीज़ें याद रखनियां ने, जियो मीट एप्लीकेशन रिलायंस द्वारा लॉन्च की गई है, जियो ग्लास लॉन्च किया गया है रिलायंस द्वारा, जियो मार्ट डेवलप किए जाएंगे रिलायंस द्वारा, यानी कि बेसिकली जोड़े स्टोर्स होंगे जियो मार्ट के नाम तो लॉन्च किए जाएंगे। प्लस 5G नूं लॉन्च करने वाली कंपनी बनेगी रिलायंस। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। एक बुक लिखी गई है द पेंडेमिक सेंचुरी, अ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कॉटिगांव फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19। बेसिकली अगर आप गल करिए स्पेनिश फ्लू फैलिया सीगा आज तो लगभग 100 साल पहले, ठीक है। ताई लिखा गया है कि द पेंडेमिक सेंचुरी, महामारी की सेंचुरी जिस स्पेनिश फ्लू फैलिया सी ते हुण फैलिया होया कोविड-19, ठीक है जी। इस दे उत्ते एक बुक लिखी गई है, बुक किन्हां द्वारा लिखी गई है, मार्क हॉनिक्सबॉम द्वारा एक बुक लिखी गई द पेंडेमिक सेंचुरी, अ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कॉटिगांव फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19, ये याद रखना, ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस की गल करिए, कृतिका पांडे नूं कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिता गया सी, कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जितया सी कृतिका पांडे ने द इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवैल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जितया सीगा कृतिका पांडे ने। स्टीव वो द्वारा जी बुक लिखी गई थी द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बुक लिखी गई थी स्टीव वो द्वारा। रस्किन बॉन्ड द्वारा रिसेंटली द सॉन्ग ऑफ इंडिया बिल्कुल रिसेंटली लिखी गई है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस तो इलावा भी रस्किन बॉन्ड की कुछ बुक्स आप पहले स्टडी कर चुके हैं, अगर तुम कमेंट बॉक्स में दस सको तो काफ़ी अच्छा होएगा।
अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किन्ना द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड द्वारा। स्टीफन किंग द्वारा बुक लिखी गई है इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स, इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक किन्ना द्वारा लिखी गई है? स्टीफन किंग द्वारा, स्टीफन किंग द्वारा। नेक्स्ट है एस्थोर्स मिशन। एस्थोर्स मिशन बेसिकली यह एक मिशन है जिस दे विच एक फुटबॉल फुटबॉल स्टेडियम दे जिदा एक फुटबॉल स्टेडियम होंगे, तुहानूं अंदाजा लगा सकते हो कि किड्डा बड़ा फुटबॉल स्टेडियम होंगे, उस साइज़ का एक बैलून तुसीं देखा होगा, बैलून उड़ाए जाते हैं जिन्होंने कह सकते हो हीलियम बैलूनस कहा जाता है बेसिकली, कि जिस दे विच हीलियम भरी होएगी उसनूं स्ट्रैटोस्फीयर दे विच भेजिया जाएगा। अर्थ की जी एटमोसफीयर की लेयर्स ने डिफरेंट लेयर्स ने उस दे विच जिहड़ी स्ट्रैटोस्फीयर है बेसिकली सब तो पहली लेयर को स्ट्रैटोस्फीयर कहा जाता है। अर्थ के उत्ते जी सब तो पहली लेयर है स्ट्रैटोस्फीयर उसनूं कहा जाता है, और उस दे विच एक हीलियम साइज एक फुटबॉल साइज बैलून भेजा जाएगा जिहड़ा कि ऑब्जर्व करेगा वेवलेंस ऑफ इनविजिबल लाइट। इनविजिबल लाइट्स की वेवलेंस नूं मेजर करेगा, ऑब्जर्व करेगा। एक किस द्वारा लॉन्च किया गया, किहड़ी कंट्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यूएसए द्वारा। बेसिकली यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। नासा द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जाएगा एस्थ्रोस। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा नासा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का नाम याद रखना है जिम ब्राइडस्टीन। जिम ब्राइडस्टीन। बाकी ऑप्शन के विच अगर रशिया की गल करिए, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। रोसकोसमोस याद रखना है। बाकी ऑप्शन के विच कुछ न्यूज़ सीगियां वो डिस्कस कर लें। सब तो पहले बांग्लादेश के रिलेटेड न्यूज़ सीगी कि इंडिया की करेगा 10 ब्रॉड गोज डीजल लोकोमोटिव्स, यानी कि बेसिकली जी ट्रेनस के इंजनस होंगे ने उन्होंने लोकोमोटिव्स कहा जाता है। इंजन 10 ब्रॉड गोज जी रेलवेज है उसनूं 3 डिफरेंट हिस्सों के वंडिया जाता है, स्मॉल गोज, ब्रॉड गोज और इस तरीके 3 तरीके के गोज होंगे, यानी कि बेसिकली इन्हों के डिस्टेंस होंगे उसके बेसिस के उत्ते इसनूं 3 डिफरेंट हिस्सों के वंडिया जाता है। उसके जो ब्रॉड गोज है, ब्रॉड गोज के 10 इंजन 10 डीजल इंजन प्रोवाइड करेगा इंडिया बांग्लादेश में, डीजल लोकोमोटिव्स बांग्लादेश में देगा। तंजानिया रिलेटेड न्यूज़ सी कि तंजानिया के प्रेजिडेंट की रिसेंटली डेथ हो गई है। तंजानिया प्रेजिडेंट बेंजामिन मकापा इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। तंजानिया कैपिटल दोदोमा और करेंसी इत्थे शिलिंग चलती है। तंजानिया कैपिटल दोदोमा और करेंसी इत्थे शिलिंग चलती है। ठीक है जी। इस तो इलावा श्रीलंका रिलेटेड भी एक न्यूज़ सी कि इंडिया ने श्रीलंका के नाल करंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ने श्रीलंका के नाल 400 मिलियन डॉलर का करंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है जी, किन्ने का? 400 मिलियन डॉलर का करंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया ने श्रीलंका के नाल रिसेंटली साइन किया है। ठीक है जी, करंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया काफ़ी कंट्रीज़ के नाल साइन कर चुका है। फॉर एग्जांपल जापान के नाल डिस्कस कर, जापान हो गया, और भी काफ़ी कंट्रीज़ ने करंसी स्वैप एग्रीमेंट याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट, केड़ी स्टेट होस्ट करेगी 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? सो याद होएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसके 3 एडिशन हेल्ड किए जा चुके हैं। पहला हेल्ड किया गया सी दिल्ली दे विच, दूसरा हेल्ड किया गया सी महाराष्ट्र के पुणे दे विच, और तीसरा गुवाहाटी दे विच असम दे विच, गुवाहाटी असम दे विच। तीसरा एडिशन की गल करिए गुवाहाटी असम दे विच हेल्ड किया गया, और मैडल टैली ने टॉप किया सी महाराष्ट्र ने 256 मैडल के नाल महाराष्ट्र ने मैडल टैली नूं टॉप किया सी। ठीक है जी, जिसदे विच 2nd प्लेस ते हरियाणा और 3rd प्लेस ते दिल्ली रहा सी। और इस बार जिहड़ा 4th एडिशन है 2021 दे विच होस्ट करेगा हरियाणा 2021 दे विच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन होस्ट करेगा हरियाणा पंचकुला दे विच, हरियाणा पंचकुला दे विच। ठीक है, जिहड़े पर्सन जा सकते हैं वो जरूर जाके देखन, और अगर नहीं देख सकते तो स्टार स्पोर्ट्स नूं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर बनाया गया। एक होर इंपोर्टेंट गल दस दिंदे आ कि स्टार स्पोर्ट्स नूं ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर बनाया गया इस दे लई। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करिए बाकी स्टेट्स के रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ सीगियां वो डिस्कस कर लें। सब तो पहले पंजाब गौरमेंट ने एक एग्रीमेंट नूं अप्रूवल दी है। किहड़े एग्रीमेंट नूं?
कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ? ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨੋਇਡ ਰੋਬੋਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪੀਟਲ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਰੇਲ ਟਨਲ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਰੇਲ ਟਨਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਾਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਰੇਵਾੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਾਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅ ਰਿਸਟ ਬੈਂਡ ਵੇਲੀ ਬੈਂਡ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ IIM ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ IIM ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇਲੀ ਬੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ IIM ਕੋਜ਼ੀਕੋੜੇ ਦੁਆਰਾ। IIM ਕੋਜ਼ੀਕੋੜੇ ਦੁਆਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਜ਼ੀਕੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਜ਼ੀਕੋੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ IIM ਕੋਜ਼ੀਕੋੜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਸਟ ਬੈਂਡ ਵੇਲੀ ਬੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।